Hello students, this is Simran Chawla, Social Science faculty from Vibrant Edge Division. Today I am here to tell you something about Vibrant Edge Smart, the one-stop solution for all the problems that you need to cover under the Term 1 board examination. Okay, so by now you must have seen other videos regarding what is SMART and what we are going to teach in them. But here I am going to tell you a little about why you need to invest in SMART. In previous month, you have studied all the subjects thoroughly, but why these upcoming 2 months are very important and crucial for you. See, if you want to achieve anything, you need a plan, you need a strategy. And here in Vibrant Edge Smart, we are going to provide you the strategy that is going to work best for you. To give you an example, I have break down the situation in 5 basic points. See, if you want to achieve anything, here we are talking about the marks that you are aiming in Term 1 board examination. So first you need to take an idea. To take an idea, you need to cover the question bank which we are giving you in this program. ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको एक आइडिया देगा कि हाउ द टर्म 1 इज गोइंग टू लुक लाइक. आपका टर्म 1 कैसा लगेगा, आपके टर्म 1 में क्वेश्चन किस तरीके से होंगे. फॉर दैट स्टेप 1 you need to try our question bank. Second, give it a try. Take our trial test series which is going to be a second step in Vibrant Edge Smart program. ठीक है, वो टेस्ट सीरीज आपको बताएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्या आपका लेवल है और किस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है. The third step is to seek help. Our subject experts are going to guide you कि आपको किस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना है और किस टॉपिक में अभी भी आपको प्रिपरेशन की जरूरत है. Our subject experts are going to be there to help you out in each and every step throughout this program. Next, prepare with persistence. Okay, this is one of the most crucial steps which you need to follow if you want to be the part of this program and if you want to reach here. So, to prepare with persistence, you need to attend our academic workshop, जिसमें कि हम आपकी प्रिपरेशन हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ करवाएंगे. एंड लास्टली, सी द रिजल्ट्स. आप हमारी फाइनल सम अप टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करोगे, जब आप उसमें अपने मार्क्स देखोगे, जब आप उसमें अपना इंप्रूवमेंट देखोगे, तो आपको पता चलेगा फ्रॉम हियर टू हियर आपने कितना अचीव किया है. तो ये तो रही बात वाइब्रेंट स्मार्ट की. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय सब्जेक्ट एक्सपर्टीज दैट इज सोशल साइंस. यहाँ पे आई हैव कवर्ड अ टॉपिक दैट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म टर्म 1 के बारे में बात करें या एनटीएससी के बारे में बात करें, क्वेश्चंस इससे बनते ही बनते हैं. क्लियर? सो आई हैव ब्रेक डाउन दिस चैप्टर इनटू सम माइंड मैप. दिस इज अ माइंड मैप ऑफ चैप्टर एंड हमने जो है इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. As you all can see, what is federalism, decentralization in India and the other things which we need to cover. But मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बताऊंगी. I'm just here to tell you one single topic, that is फेडरल सिस्टम एंड द यूनिटरी सिस्टम. देखिए, सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर आर डिवाइडेड इनटू अ मेजर यूनिट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. तो आपको लगता होगा कि पावर जो है वो तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में ही डिवाइडेड होंगी, बट नो, इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू. The system of government are divided among 2 types on the basis of system जिनके हिसाब से powers divide होती है. The first one is the federal system, जो कि हमारे इंडिया में है. There is a central power and other constituent powers. And in unitary system of government, there is only one single power who rule throughout the country. Okay, you can see the examples. Examples are India, Spain, and Belgium, and here the example are China and United Kingdom. Okay. चलिए, that is majorly about the thing. Now we are going to discuss about one thing which is again very very important, features of फेडरलिज्म. ठीक है, ये 7 फीचर्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए और इस टिप्स पे याद करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ लिटिल स्टोरी. सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट 2 पॉइंट्स की कि फर्स्ट 2 पॉइंट्स को किस तरीके से याद रखना है, तो देखिए, फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेडरलिज्म क्या होता है. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड अमंग द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम हमें यही बताता है कि इन फेडरलिज्म पावर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. नेक्स्ट, ये जो पावर्स होती हैं, दीज levels have their own jurisdiction. As you all can see, I have highlighted this term, jurisdiction.
नाउ व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन इज बेसिकली द एरिया ऑफ कंट्रोल, कहाँ पे कंट्रोल जो है वो जरूरी होता है. ओके, तो आई हैव टेकन एक एग्जांपल, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल. देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है, देयर आर टू डिफरेंट लेवल्स एंड सबकी जो पावर्स होती है वो अलग अलग होती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, सपोज लाइक इंडियन आर्मी है, फॉरेन अफेयर्स है, ये सारे आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. एंड स्टेट गवर्नमेंट हमारा रूल करती है पुलिस के ऊपर. तो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने सोचा कि मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, आई एम गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग अराउंड मी. ठीक है, मुझे जो है पुलिस के ऊपर भी कंट्रोल लेना है. तो सिंस हमारा जो सेकंड पॉइंट है, जस्ट 1 मिनट, सिंस हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो बताता है कि दे हैव देयर ओन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, दे कैन नॉट टेक द कंट्रोल, बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि मेरे पास ज्यादा पावर है और मैं तो कंट्रोल लेकर के ही रहूंगा. ठीक है, और ये जो पावर्स हैं ये किस अकॉर्डिंग डिवाइड होती है? ये डिवाइड होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है, कि कल को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये सारी चीजें किसके पास कौन सी पावर है, ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है. अब इन केस the central government want to change these power, they cannot change it unilaterally. ठीक है, वो खुद से चेंज नहीं कर सकते, they need to take the majority of states as well. और इन केस अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं मुझे पावर चाहिए एंड स्टेट आर डिनाइंग द फैक्ट, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हेल्प करेंगे हमारा कोर्ट, हमारा जुडिशियल सिस्टम. ठीक है, तो दीज आर द 5 पॉइंट्स जिनको कि आप याद रख सकते हो. 6 पॉइंट्स में बताता है अपना सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, स्टेट के पास कितना टैक्स जाएगा, सेंटर के पास कितना टैक्स जाएगा. एंड लास्ट इज द इट इज लाइक द मोरल ऑफ द स्टोरी, जो कि हमें बताता है कि फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. इट हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी. ओके, सो मैंने यहाँ पे जो है कुछ लिस्ट आपके सामने डिवाइड कर रखी है. द सेंट्रल लिस्ट, द स्टेट लिस्ट, द कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कि दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों का रूल चलता है, बिकॉज दीज आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. जैसे एजुकेशन की अगर अपन बात करें तो सीबीएसई बोर्ड भी है, आरबीएसई बोर्ड भी है. ठीक है, दोनों के अक्यूमुलेशन से हमारी कॉन्करेंट लिस्ट बनी है. एंड देन देयर इज अ लिटिल रेजिडेरी लिस्ट दैट वी हैव which tells us about the things जो कि बाद में एड ऑन हुई है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में रेडी हो गया था और उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आए वो रेजिडेरी लिस्ट में ऐड कर दिए गए और उनपे भी कंट्रोल किसका रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है. क्लियर? आई हैव few questions as well regarding these. The constitutional body that resolve the dispute between the central and the state government is the 5th point, that is the Supreme Court. Okay, तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता रखा था. आंसर इज सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा 5th फीचर है. एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेरी लिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेरी लिस्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ठीक है, उसमें आपने देखा था ई कॉमर्स भी था, बट दिस इज ओनली कॉमर्स. ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड कॉमर्स, तो कीप दैट थिंग इन माइंड. Lastly, I have given you 2 questions. You can just have a look on them. Okay. So these are the 2 questions which you have to solve on your own. And यही कुछ questions है हमारे जो कि जिनके बेसिस पे हम आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे. क्लियर? Now, how can you register for Vibrant Smart? ठीक है, you have to open the website edgevibrantacademy.com. You can see something like this. ठीक है, इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, वेब पेज ओपन होगा. नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक एनीवेयर. ठीक है, ऊपर कहीं पे भी आप इसको क्लिक कर सकते हो. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, यू कैन सी इस तरीके से चीजें आएंगी, है ना. You have to keep scrolling down. There are all the details, everything that you need to know about Vibrant Edge Smart. Okay, चलिए, lastly there is one last thing. You have to apply. You have to click here. Click to apply. Okay, so यहाँ पे आपको अपनी सारी details fill करनी है. You need to scroll down, fill all the details, and then you have to submit and pay for the fee. Okay, that's all about the Vibrant Edge Smart. For more details, you can click the description or the caption. Okay, thank you so much. Bye everyone.